One hopes you're all working very hard to do yourself out of a job. I'm talking about participative democracy from a representative democracy. Now, I did an Indian Express op-ed last week. Where is the boy who has a lot of them? Because I just wanted to wave one. He had here. And I wonder if you can share them with some of the people. This came out last week based on this conference, which I think is a remarkable achievement, and all credit to Rahul. You may want to give it to the and to others who want to have it. I don't know where he's gone, but he had about 20 sheets. But what for ever as well. So the Indian Express op-ed was a real challenge at NLC. Will be finding ways to turn what I said, a representative democracy, into a vital participative instrument, a living movement, and not just an elephant in the dark appearing once in 5 years. If it's only a matter of remaining in the public eye, why is it necessary to reconstruct one's image? I think reaching into the hearts of voters, what Sanjay ji spoke about, authenticity, integrity, credibility, requires ensuring a very dignified means for people to empower themselves first. The traditional knowledge systems have to be resurrected, their sense of identity protected. All the subsidies and resources or goodwill one can garner will not infuse transparency and commitment if we rush into the quick fix formulas and image change with instant culture, notwithstanding all the social media and everything that you spoke about, Sanjay ji. Imagination requires very sensitive improvisations with its own pace, space, context. Slow and steady can be very hard work. धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत है. माली सींचे 100 घड़े ऋतु आवे फूल होवत है. तो अगर आप चाहे चटमंगनी पट ब्याह कि आज क्या कल उसका रिजल्ट मिल जाए, मेरी इलेक्शन फिर से अनाउंस होने वाली है, 5 साल रह गए हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है. तो इसी तरह बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बसती है. Not easy, this settlement. While settling and settling, it settles. I'm showing the great hand that Corbusier did, a hand, please to note, to signify contemporary India as an icon for India, which its skill as a very deft weft and its insight as a warp gave India its very first global brand. Now, resilient sufficiency will require going beyond soliciting token participation. And innovative enterprise will provide more than just mere livelihood or what we call employment. So, this word pehchan, a little more than recognition or identity. It is as old as our sabhyata and is more about making, doing, and being. What is our signature? जब हम कह रहे हैं कि हम इमेज बनाना चाहते हैं, हमारा सिग्नेचर क्या है? भारत का हस्ताक्षर क्या है? भारत का हस्ताक्षर, ये हाथ की जो भूमिका है क्या? उंगली 5 पाउंडों, हाथ बने हस्तिनापुर. और एक और रूप मुझे याद आ रहा है कि दस्तकार ए दरिया, काबिलों की उम्र बढ़ जाती है, खुद कर लो हिसाब, हुनरमंद का एक दिन, बेहुनर का 1 साल. मैं बार बार कहता हूँ कि ये हाथ का जो काम,
जो आपकी अपनी पहचान है, आइडेंटिटी है, आपका आपका पकवान, आपका रहन सहन, पहनावा, आपका सोचना, आपका खेलना, आपका जो भी हम क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज के बारे में मैं जिक्र करूँगा, ये हमारी पहचान है। कल जो हमने देखा, मुझे सब चीज़ 2 दिन से मैं इतना भावना से भरा हुआ था कि आप लोगों का उत्साह और आपकी जो एक उपज है, जो हर मौके पे जब बाहर जाके मिलते थे, यहाँ कल मैंने सेशंस भी देखे, वो देखने को बनता था कि आप जड़ों से जुड़े लोग हैं। पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, बड़ी खबर होती है, मगर ये पहले ऐसा प्रयास है, तो मैं राहुल को सलाम करूँगा। मगर मुझे बुरा भी लगा कि इसमें कल्चर का और संस्कृति का, जिसको मैं सभ्यता भी कहूँगा, उसका एहसास कहीं ना कहीं जितना होना चाहिए नहीं हो पाया। आप सबको कहा था अपने कपड़े पहन के आइए, मगर किसी के पास अपने कपड़े तो रहे ही नहीं। अपने नाच कीजिए, अपना संगीत कीजिए। उषा मेरी मित्र हैं, उन्होंने संगीत को एक नए मोड़ तक लाई हैं, पूरा हमारे स्थानीय संगीत को लेकर एक नया रूप भी दिया है, वो सब है। मगर उस पर अब मिलावट की दुनिया ऐसी होगी कि जब तक बम्बैया ना हो, हम बम्बई में हैं, तो हम हिंदुस्तानी ही नहीं है। मगर इसकी जो डाइवर्सिटी है, हमारी पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, वो जगह जगह में जगह उसका जो हर चीज़ जो हमें हिंदुस्तानी बनाती है, उसका एहसास कम दिखा, और आप ही उसके संरक्षण हैं। मैं एमपी से बातें करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी हैं उनसे बातचीत कितनी हो चुकी है हर स्तर पर, मगर मुझे लगता है कि ये काम जो आप पंचायत उस लेवल पे होगा, वही आगे जा सकता है। तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि इसी को लेकर जब मुझे जीवी के ग्रुप ने बुलाया कि आप हमारा बम्बई का एयरपोर्ट बनाइए, तो उनको कहा कि ये बम्बई का एयरपोर्ट चाहिए, हमें ऐसा ना लगे कि लोग दुबई में आ गए हैं या शंघाई में हैं, हमें तो अपनी असलियत दिखानी है। तो और मैंने कहा अगर वहाँ पे 1,500 कारीगर को मैं इकट्ठा करूं और साथ उनके साथ काम करूंगा, तो आपके पास उतनी सामग्री है। अब हमने एक रूल बताया उनको कि 2% जो भी खर्चा होता है बिल्डिंग की, पब्लिक इमारत के लिए, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ होना चाहिए, जो कभी नहीं होता। 2% एक $15,000 की इमारत के लिए एक मायना रखता है। अब आपके छोटे स्कूल भी हों या जो भी आप बनाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो भी वहाँ लागू होता है, मगर गाइडलाइन है। अब आप बड़ी जल्दी से सीमेंट, स्टील, ग्लास, इसको आधुनिकता का रूप लेकर चीज़ें बनवाते हैं, मगर पत्थर, मट्टी, लकड़ी, बांस, ये सब चीज़ें भी एक बहुत पुरानी प्रणाली है, जिससे सदियों से हिंदुस्तान बसता रहा है और जिसके आधार पे कितने वास्तुकार जिए हैं। स्थापति हो या सोमपुरा हो या महाराणा हो या क्या कहते हैं जो चारी हो या रामगढ़िया हो पंजाब, जहाँ ये सब हाथ की कला से जहाँ गए हिंदुस्तान को लेके, हिंदुस्तान का पहला और दौलत कहाँ से आई, उसकी पहचान कहाँ से आई। तो हम इमेज की बात कर रहे हैं, मगर आप ही की इमेज अब तो दूर के ढोल सुहावने, अगर आप भी सबके जैसे लगने लगे तो आगे क्या होगा। भूटान के महाराजा, जब मुझे महाराजा और अब के राजा और उनके पिताजी मिलते थे और बात करते थे कि आप यूएन में सर्दी में आप अपने कपड़े पहन के जाते, महात्मा गांधी भी अपने कपड़े पहन के जाते, क्यों? क्योंकि पहचान है। और अगर वो सबके जैसे बन जाएंगे तो भूटान एक छोटा सा देश है, कौन देखेगा। हिंदुस्तान बड़ा देश है, मगर हिंदुस्तान की भी अपनी पहचान अलग अलग है, छोटे छोटे प्रांतों की है। तो मैं अगली बार से ये इस प्रयास को, ये this absolutely brilliant exercise of bringing the grassroots together, I would explain to them, inspired by the creativity of India. इसमें कोई इतनी उपज है, ये कभी भी एक जगह सीमित नहीं रहा। अब आप रोड काट रहे हैं,
तो वो रोड कटते कटते एक पहाड़ खुल गया, तो उसपे कलाकारों ने एक मंदिर बना के उसमें इतनी कहानियाँ दिखा दी। अब वो रोड साथ में चल रही है, वहाँ पे एक और कहानी भी साथ चल रही, इसको सिनेमोग्राफी भी कहते हैं, जो एक लंबी कहानी, मैं उसके बारे में यहाँ नहीं जाऊँगा, मगर मैं सिनेमोग्राफी क्यों बना, ये लंबी कहानी है। अब हर चीज़ में हमारी जो याद हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जिनको हम किस किस्म से उनकी आराधना करते हैं, हम हर सीज़न को किस तरह बदलते हैं, उनको हम हमारी जो सेंसेस हैं, पांचों इंद्रियां जागी हुई हैं और सिकुड़ी नहीं है, और हम किस किस्म से प्रस्तुतिकरण हमारा कितना उभरा हुआ है। हम एक अंडा बेचने वाला भी अपनी दुकान को देखिए कैसे सजा लेता है, सोच समझ कर। वो उसको नियॉन लाइट नहीं चाहिए, मगर वो भी एक सृजनात्मक तरीका ढूंढता है कि मैं अपने आप को कैसे दिखाऊं। या ऐसे कई और मेरे हज़ारों फोटोग्राफ्स हैं जिसमें जो अनोनिमस जीनियस है इस देश की, जिसका नाम नहीं है, जिसको कोई पद्म भूषण और ये सब चीज़ से अलंकृत नहीं किया, वो भी सोच रखता है। मिट्टी के साथ जुड़ी हुई लोग जो हमारे स्लम्स में क्रिएटिविटी है, वो सफोकेशन से वो भी अपने आप को कायम रखता है। तो हमें वहाँ देखना है, हमें कोई इमिटेटिव मीडियोक्रिटी से नहीं फंसना। जहाँ पर आप अपना एज क्रिएट करेंगे वहीं आप आगे जाएंगे, नहीं तो डेरिवेटिव सब जो चीज़ें हैं वो तो मीडियोकर होती हैं। आप बाकियों के साथ हो जाए तो आपको देखेगा भी नहीं। In the following few minutes, I will try to suggest a few tenacious tools and techniques that only you as grassroots Vidayaks can bring to your constituencies. I've tried to make myself useful in the movement to reach the doorsteps of India's so-called unorganized manufacturers and service providers, to transform the derogatorily titled unorganized sector into a more dignified, self-organized, self-supporting entity. अरे अनऑर्गेनाइज का क्या मतलब है? अरे तो अपने आप चल रहे हैं, आप सरकार उनको ऑर्गेनाइज करे ना करे, वो तो सेल्फ ऑर्गेनाइज है। वो जी रहे, उनका ज़्यादा जीडीपी, उनकी कंट्रीब्यूशन देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से कई गुना ज़्यादा है। जॉब्स देखें तो आपकी जितनी भी इंडस्ट्री जिसके पीछे आप भागते कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आइए, यहाँ ये उससे कई गुना ज़्यादा है इनकी कंट्रीब्यूशन। तो ये छोटा आदमी कहाँ है, आपके एजेंडा में कहाँ है? उसकी जो हुनर है, उसकी जो एक शक्ति है जिससे वो अपने आप पैरों पे भी खड़ा हो सकता है और समाज को भी एक मकाम, एक तरह की पहचान दे सकता है। वो आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में। तो टू ट्रांसफॉर्म दिस derogatory title unorganized sector, I felt that we started a discussion with the Planning Commission कोई 15 साल पहले on the need। उसके बाद योजना नीति आयोग ने भी 15-17 सेक्रेटरीज को इकट्ठा करा, अमिताभ कांत और प्रधानमंत्री जी ने, और वो मैं बोला और सबसे बात भी की, मगर ब्यूरोक्रेसी अपने ही चाल में चलती हैं, फाइल बढ़ती जाती है, कुछ काम होता है वो हम ही लोगों को देखना पड़ेगा। सरकार ने बहुत कुछ किया है, मगर मैं कहता हूँ इस मुद्दे में ज़रा लापरवाही बरती है। कल्चर पॉलिसी, हमारे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ पे अभी बहुत काम बाकी है। हमारी माइक्रो एंटरप्राइजेस पे ज़्यादा लिप सर्विस है मगर काम है। सो वन इट एक्सप्रेस्ड अ क्रिटिकल नीड टू मैप ट्रेडिशनल स्किल्स कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है। List all the various departments and government initiatives under different ministries that cater to the artisanal and cultural industries. I know this was one way to effect coordination. हमारे यहाँ पे 9 महकमे हैं जो एक ही चीज़ को देखते हैं, एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं जानता क्या कर रहा है। मैं आप विधायकों से पूछूंगा, आपके ही क्षेत्र में कोई एक दो बात करे मेरे से कि हमारी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा। कोई कुछ कहना चाहे, कोई ऐसा, हाँ बताइए प्लीज़। बिदरी वर्क्स। हाँ बिदर का तो है, मगर आप बिदर के हैं हैदराबाद के? बिदर के।
हाँ, तो बिदर में शुरू हुआ, मगर अब तो हैदराबाद में भी काफ़ी है। ऑल ओवर द मगर वर्ल्ड बिल्कुल ठीक नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है है ये, नहीं जो ये जो एक्सपोर्ट हो नहीं रहा नहीं है। नहीं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इधर ही हाँ होता हाँ, मैन्युफैक्चर मगर एक्सपोर्ट हो जाता हाँ, मगर बिदर में अब हैदराबाद में बना भी रहे हैं। आपके बिदर का फोर्ट का जो सॉल्ट फीचर Salt था, वही। उसके साथ वो काला करना ऑक्साइड, वो जिंक और कॉपर के Zinc, ऑक्साइड, तो copper। वो आपकी खासियत है। हाँ, और उस पर जो इनले करना, वो आपकी खासियत है। वो अभी चाइना भी नहीं कर पा रहा। नहीं करते और वो मगर अगर आप देखें तो आपको मैं इसकी आंकड़े दे सकता हूँ, मगर हम जितनी ट्रेनिंग स्कीम्स चाहिए इसके लिए वो नहीं हो पा रही, बिकॉज मायूसी है। छोटे कारीगर कहता है मैं क्यों करूँ, मेरे बाप को क्या मिला इससे, मुझे कहाँ बाहर भेज रहे हैं किसी चीज़ की। आयोग में आपके ट्रेड में मेरा कहाँ नाम है इतना। तो ये सब बहुत लंबे फाइनेंशियल असिस्टेंस जी, मगर फाइनेंशियल मटेरियल, मगर ये सब बातें लंबी हैं। ये मेरे पास कुछ मिनट है, मैं अलग अलग हर क्षेत्र में कोई मैं ओके 500 डिस्ट्रिक्ट्स घूमा हूँ और feel very privileged that I've been able to serve this sector more than I can return in one lifetime. 9 लाइफ भी हो तो वापसी नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है और इन्हीं के बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो बट मैं जो कहना चाह रहा था कि ये एक तो कोऑर्डिनेशन सरकार की तरफ से, और दूसरा कि ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अब इधर को कॉपी कर सकते हैं लोग, और करने की कोशिश भी है। मैन जगह जगह पे अब मेटल के साथ सिल्वर का इनले हो रहा है। लखनऊ तो किया भी था, फिर उनको रोका गया, वो अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो ट्रिप्स का और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का जो महकमा है, उस पर आप गौर कीजिए। मेरा यहाँ समय नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने हाउ टू क्रिएट कमर्शियल और कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स फॉर डिफाइनिंग द राइट्स ऑफ, जैसे फार्मर्स हो, इनोवेटर्स हो, रूरल इन्वेंटर्स हो, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स, और जो रिसोर्स बेस है। It would help to create a social and legal infrastructure to patent or reward the inventing individual or communities for their innovation through a profit sharing mechanism. ये मुद्दा सिर्फ सेंट्रल लेवल का नहीं है, ये आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर सकते हैं, और मैंने इस पे बहुत कार्यक्रम किया छोटी वर्कशॉप के लिए। But the crucial issue is that while we debate the pros and cons of TRIPS, we must realize that the bull has been let loose. If we do not take it by its horns, it will kick where it hurts. And tribals have preserved and prepared centuries wide range of foods, condiments, human and animal medicines, fodder, fiber, house construction ideas, agricultural practices, implements, manure, insecticides, religious beliefs that contribute to biodiversity. मेरे दोस्त अनिल गुप्ते का एग्जीबिशन है, उस पर कई ये चीज़ें आप डिटेल में भी जाके देख सकते हैं. All these are the legacy of our indigenous people. How do we define what they themselves don't consider as their industry to a new world? What do we do to protect the poor and the less informed? अब ये सेक्रेटरीज, डिपार्टमेंट्स, जितने भी महकमे हैं जो नॉलेज इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, उनको मैप करना, उनको एक दायरे में लाना, एक हाथ का दूसरे हाथ के बारे में जानना, ये सब चीज़ें 40 कंट्रीज़ में इसके पूरे में अच्छे सिनर्जी है, इसकी इंस्टीट्यूशंस है, पेडागोजी है. हमारे देश में अभी भी ये क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्री हम बातें ही करते रहते हैं. 2006 में मैं प्लानिंग कमीशन में था, अब फिर 2 साल पहले बात की, मगर वो फाइल ही बड़ी बनती है. ओके, सो स्किल, हाँ, तो ये डिटेल्स में मैं नहीं जा पाऊँगा माइक्रो एंटरप्राइजेस के, और ये किस किस्म से ये इंडस्ट्रीज़ का जो रूपरेखा है वो क्या है, ये अगर आप कोई चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, जिससे आप समझा सकें. ये हम ही ने यूनेस्को के लिए मैंने काफ़ी साल 20 साल पहले काम करके बनाया था, जिससे कि ये हमारे पॉलिसी मेकर्स समझ सकें कि इसकी डेफिनेशन क्या है. अब आप एक चीज़ देख लीजिए, फ्रांस में एक शैम्पेन है. राहुल जी से परमिशन, मैं शुरुआत कर रहा हूँ शैम्पेन के बारे में बताने के साथ. मगर सर हमें टाइम बिल्कुल कम, तो मैं अब ख़त्म करता हूँ.
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, शैम्पेन आज एक ही गांव का नाम है। शैम्पेन आप कहीं नहीं बना सकते। आप अमेरिका में इसको शैम्पेन नहीं कह सकते, बेशक लाखों की तादाद में बोतलें बिकती है, उसको सिर्फ आप बबली कह सकते हैं, शैम्पेन नहीं कह सकते। तो आप अगर वो जीआई चाहते, और आपको आप हर चीज़, ऑस्ट्रेलिया में जो एबोरिजिनल्स कर रहे हैं, इसके कई 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 पहलू हैं। बासमती राइस, अब जगह जगह पे लोग बासमती बेच रहे हैं। आप चाय की बात करें तो 40,000 मिलियन टन बिकती है दार्जिलिंग, मगर दार्जिलिंग में तो सिर्फ 10,000 मिलियन टन बनती है, बाकी सब फेक कॉपी कर रहे हैं। तो हमने अपनी संपत्ति को खो दिया, हम उसको बचा नहीं सके। अब इसमें छोटी चीज़ें, मथुरा के पेड़े हों, या जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, कसूरी देसी वैरायटी मेथी, कुंभकोणम का धनिया, रेसिपीज ऑफ शेफ नोन टू हिज रीजन्स, इंडिविजुअल इनोवेशन, इन्वेंशन, जुगाड़ जो जगह जगह में फ़र्क है, मैं उसका भी उस पर नहीं जाऊँगा, जो इन्वेंटर्स ने लिया है। बिल्डिंग आर्ट स्किल्स में फ्लोर प्लास्टर्स, पद्मनाभपुरम के पैलेस देखिए, उसके स्थापति महाराणास का काम मैंने बताया था। परंपरा, पारिवारिक परंपरा के बारे में भी बहुत कुछ बोलना था, मगर पत्थर पे काम जो होता है। अब ये देखिए, मेरी एग्जीबिशन के लिए केसरी राम ने एक गांव में बनाया जो आज म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में पड़ी है, मगर केसरी राम और उसकी कम्युनिटी क्या कर रहा है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसमें पत्थर तोड़ रहे हैं रोड के लिए, मगर उनके पास ये स्किल है जो बना सके। या ये जो टेंट बनाए हैं, ये जो बड़े बड़े घोड़े हैं, ये सब अमेरिका गए थे मेरे साथ, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। कोल्हापुरी चप्पल जो अब मशीनों में ज़्यादा बन रही है, हाथ से, हाथ की चीज़ को लेकर मशीन में कॉपी किया जा रहा है। नया गांव, ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैं इधर नहीं ला सकता, ऐसे तो हज़ारों हैं। अनरमुला मिरर जो केरला में विज्ञान, यूनिक विज्ञान के साथ किस तरह तैयार होता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में कलरी पेट है, आपके आयुर्वेद मसाज के तरीके, आपके जो मलखम है, हमारी जो एक्रोबैट्स है, इसके 16 विभाजन हैं जिनको मैंने मेरी किताबों में बड़े ध्यान से समझाया है। मगर आप अंत में ये देखिए, ये औरत रस्सी बनाती है और 20 रुपए किलो के हिसाब से बेचती है। अब नए डिज़ाइन के साथ जो हमने दिए काम किए कि आप लाइटें बनाइए, फर्नीचर बनाइए, आज वो 350 से लेकर 600 रुपये कमाती है। यही वो लोग जो मछली पकड़ने के लिए नेट बनाते थे, नेट में उनके जाल बनाते थे, उन्होंने फर्नीचर बनाया, लाइट्स बनाई, अलग किस्म की एम्ब्रॉयडरीज बनी। ये पूरा चीज़ जियो के तहत, JIO नहीं जहाँ हम बैठे हैं, JIYO जो जियो से 10 साल पहले बना था, और जो सब कारीगरों का खुद का अपना ब्रांड है। मुझे मुकेश भाई ने भी कहा कि अब ये हम जियो बना रहे हैं, इसको आप रजिस्टर भी किए तो लुप्त कीजिए, ऐसे आप बदलिए, हमारा JIYO है, आप बेशक JIO रखिए, हम कुछ कर नहीं सकते। मगर इसकी कहानी थी तो मैं बताऊं, 6 स्टेट्स में काम हो रहा है और इस किस्म की चीज़ें बन रही हैं। महात्मा गांधी की हैंड राइटिंग है जियो, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरह आइडेंटिटी के बारे में मैंने बात कर दिया। Finally, I would like to conclude this presentation and sum up on how critical it is for the government to put a large part of its resources in the promotion and protection of our legacy enterprises. I feel Vidhayaks should go way beyond their role as mere providers of a grassroots delivery mechanism for state or central policy. Instead, they must become new era entrepreneurs, more like public limited companies or rural corporations developing and protecting regional and people's brands, creating offerings and protecting standards of quality, whether business hubs or cultural creative industries helps them or not. They themselves must help the small becoming big, the marginal becoming massive. Thank you.